Okay, so let's start with the tested understanding of the previous chapter, that is yesterday's session, day before yesterday का session, chapter 12 का. अब इसमें लेट्स से दिस, मुरे का जो कंपनी जो अपन ने अभी तक जो भी किया फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स का, उसका अपने को ऑडिट रिपोर्ट बनाना है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ द गोइंग कंसर्न रिव्यू अपने जो प्रीवियस में दिखा है. ओके, so at the completion stage mein this audit engagement letter has partner has decided that there is a material uncertainty material uncertainty part of it. So the engagement partner has decided that there is material uncertainty regarding the going concern status of Murray company. So he has requested that directors make adequate disclosure. तो उसने रिक्वेस्ट किया कि डायरेक्टर्स को कि आप डिस्क्लोज करो. Okay, for the financial in the final version of the financial statements for the year ended 31st December 2014. अब अपने को what they wanted was describe the impact on auditor's report. Okay, describe the impact on auditor's report for the year ended 31st December 2014. इसमें पहला क्या है? The directors include disclosure regarding material uncertainty over going concern, which in the partner's view is adequate. जो पार्टनर के हिसाब से एंगेज पार्टनर जो है उनके हिसाब से सफिशिएंट है. अभी आप उसको क्या करोगे मुझे बताओ गुरवी. व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू मेंशन दैट. सो टेल मी. गोइंग कंसर्न के बारे में लिखेंगे. ओके. That there is a material uncertainty regarding the going concern status of the Murray company. सी यहाँ पे जो है यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग इज दैट इन दिस केस point number one is that the directors include disclosure. See, here we are saying that there is a material uncertainty and the director should make adequate disclosures. And here the directors include disclosure regarding material uncertainty. So now, as an auditor, so when you're putting a report, so that means, sorry. So here, if the directors are making adequate disclosure as per the report, that means we as an auditor should state that the financial statements are showing as there is no material misstatement. Okay, because they're disclosing na, about the material uncertainty. So we have to mention कि as there is no material misstatement or lack of sufficient evidence or appropriate evidence on the matter, the auditor का जो opinion जो रहेगा has to be unmodified. Unmodified opinion we will be giving it. Okay, huh. Regarding this material uncertainty which is there regarding the going concern, we will be mentioning in the communication. अपन ने बोला ना unmodified opinion with communication. So there we are going to talk about the going concern thing, and we will draw the attention of the जो भी disclosure ये जो note जो है ना that you want director to disclose the final version of the statements जो हैं वो उसके बारे में बताओगे. ओके, एंड ये भी मेंशन करना पड़ेगा टू द शेयर होल्डर्स. एक पैराग्राफ डाल के वी हैव टू स्टेट दैट हमारा ओपिनियन लाइक एज एन ऑडिटर्स, लाइक वी आर द ऑडिटर्स राइट, एज एन ऑडिटर्स हमारा ओपिनियन विल बी नॉट मॉडिफाइड इन द रेस्पेक्ट. ओके, एंड ये सब अपने को इंसर्ट करना पड़ेगा पैराग्राफ जो अपन ने फॉर्मेट जो दिखा है ना in the previous class. That format we had to put it. So we had to put a paragraph about the uncertainty going concern का. We had to put a paragraph about the opinion, अपना जो auditors opinion जो है. So they just want what we are going to mention that.
because here we need to disclose the impact on the of the report. Okay, then we need to talk about, because they have disclosed, we'll say there is no material misstatement, but yes, we are going to add a paragraph on the going concern issue. Okay, so that is point number one wala. So then out of three you will definitely fetch 2 to 2.5 marks. Okay, next, अगर डायरेक्टर रिफ्यूज करते हैं डिस्क्लोज करने के लिए, दिस इज व्हेन वी आर गोइंग टू गिव देम अ व्हाट वी से मॉडिफाइड ओपिनियन. पहले वाला अनमॉडिफाइड था क्योंकि हमने जो डायरेक्टर को बोला उसने किया, बट अगर वो बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, आई विल नॉट change the statements, or he refuse to give the statement of the disclosure part, that is when you are going to give an modified opinion about the material misstatement part of it. बाकी सब सेम में वही रहेगा, टाइप ऑफ ओपिनियन आप दोगे. ओके, एंड देन हो सकता है कि आप एडवर्स ओपिनियन दे दो, बिकॉज दे आर नॉट agreeing to what you are saying. You can give an adverse opinion, and you can even say that क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि यू आर टेलिंग द डायरेक्टर्स उसका repercussions, उसका effect, impact. So we will say that she will give them an adverse opinion or negative opinion, you can say that. Okay, and you will also say that the books of accounts or the financial ones are not fairly presented. आप वो भी लिख सकते हो, एंड देन यू विल गिव देम टू पैराग्राफ्स. कौन से, एक ओपिनियन वाला पैराग्राफ तो आप वैसे भी दोगे, एंड दूसरा you are going to give them a except for the matter. That means you are giving them restrictions, you are giving them qualified statements. So qualified opinion शुरू हो जाएगा. So you have to mention that in the point number 2 में. So there also you can easily score 2 marks. So or if these kind of things comes in, you can easily score between total 3 to 4 marks आप स्कोर कर सकते हैं. समझ में आया पूर्वी? हाँ. ओके, अभी सेकंड भी ISA 260 के बारे में ही है. ओके, सो अगेन वी विल बी रेस्पॉन्सिबल, स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबल टू दोज हु आर चार्जिंग विद द गवर्नेंस, अपने को बताना है. Okay, and then four examples then, so that you can definitely give different examples, like purpose and scope of audit भी दे सकते हो four examples में, and उसमें 2-3 लाइन लिख सकते हो. You might talk about responsibility जो फाइनेंस स्टेटमेंट्स का जो रहता है डायरेक्टर्स का, मैनेजमेंट का, वो आप ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो. ओके, एंड देन यू कैन ऑलवेज talk about what we say, significance. सीरियल सब दे सकते हो. इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स के इश्यूज जो मेंबर्स देते हैं, एसएससी मेंबर्स, उनके इश्यूज आप दे सकते हो कि अगर आप जिस तरह से प्रोजेक्ट करते हो पोटेंशियल इंडिपेंडेंस का, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है. सो हेंस यू नीड टू मेंशन देम दैट दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबिलिटी पार्ट ऑफ इट. सो इसके ऊपर एक 2-3 एग्जांपल्स आप दे सकते हो, 1-2 लाइन्स यू कैन राइट इट. सो आपके फाइंडिंग्स का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल में एक्सपेंड करो. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि इंडिपेंडेंट इश्यूज के बारे में, लाइक हाउ ऑडिटर्स का जो इंडिपेंडेंस जो है, इफ on the independence issues of the auditor, if we talk about, you can mention them that all auditors जो रहते हैं, जो ACCA members जो हैं, so they are supposed to comply with the standards of ACCA. So उसको expand जब independence के बारे में बोलेंगे तो though they are independent, but still they do fall under the purview of the standards laid down by the ACCA. Okay, in the same way, you need to ensure that you need to safeguard um, what we say, the independence that you have. Okay, that has been identified. Because sometimes वो safeguard करने के लिए you might even say that engagement letter you can cancel it for that reason, to safeguard those things. तो वो examples आपको mention करने पड़ेंगे to expand it, those points. In short, you just need to give them that as an auditor what you're communicating with them when it comes to the people who are going to charge with the auditor's responsibility.
एंड ये भी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग सिमिलर है एंड देखा. सो दिस यू कैन डू इन डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो. हर एक सिनेरियो का अपना देखना. ये सिनेरियो का आपका ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है. ये सिनेरियो का केस स्टडी यू हैव टू से कि लेट्स से बुलियन कंपनी हैज नॉट मेड एन एलवेंस फॉर एन irrecoverable debt of $50,000 in respect of customer declared bankrupt after the year end. प्रॉफिट जबकि 5 लाख डॉलर है. तो यहाँ पे यू माइट से लाइक, तो 5 लाख का 10% कितना, 50,000. तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट 10% रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस इसका. सो डेफिनेटली मटेरियल है. सो इरेगुलर डेट है जो रिटर्न ऑफ नहीं है, तो वो करने के लिए बोलोगे आप, और स्टेटमेंट हो रहा है. तो यू कैन से इन दैट केस योर ओपिनियन, दैट इज ऑडिटर्स ओपिनियन, विल बी अनमॉडिफाइड. ओके, मॉडिफाइड रहेगा. ओके, कॉल फॉर ओपिनियन रहेगा. एक्सेप्ट फॉर वर्डिंग बोल देंगे आप, एक्सेप्ट फॉर दिस ट्रांजेक्शन, बाकी सब ठीक है करके बोलोगे आप. Okay, so you will amend your opinion accordingly, and based on that you are going to give them a reason of call for opinion and उसका effect, that means this transaction का effect on the financial statements के बारे में आप you will be mentioning in your auditor's report. Simple. Same way, so these are all different cases where the auditor is going to give his opinion accordingly. Okay, वही आपको expand करना है. समझ में आया? और भी सर इसमें वो फर्स्ट वाला कराओ ना, कौन सा, पहला एरोगन वाला? वाला. ठीक है, ये यहाँ पे एरोगन कंपनी ऑपरेट्स है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. ओके, हेनरी में पहला वाला जो है. ओके, नो ईयर एंड काउंट इज परफॉर्म, दैट मीन्स यहाँ पे ईयर एंड काउंट जो है परफॉर्म नहीं हो रहा है. सो दैट इज डेफिनेटली समथिंग यू हैव टू थिंक. ईयर एंड नहीं हो रहा है. ओके, दैट मीन्स there is no what we say, you have reviewed the level of adjustments made each month में adjust हो रहा है after each perpetual count and concluded that due to the significance of the adjustments, the inventory system is not reliable. You have requested that a full year-end count is performed, but management refuse कर रहा है. जब मैनेजमेंट रिफ्यूज करे तो क्या करोगे? आपका ओपिनियन मॉडिफाइड रहेगा. ओके, आपका ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन होगा. दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गिव ए कंडीशन एक्सेप्ट फॉर दिस एवरीथिंग इज फाइन. अदरवाइज ये अगर इंक्लूड करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम है. ओके, सो यू विल गिव देम ए क्वालिफाइड ओपिनियन. एक लाइन आप कॉल फॉर ओपिनियन के बारे में बताओगे. एक लाइन आप बोलोगे कि ऑडिटर हैज टू गिव विल ओपिनियन विल बी मॉडिफाइड. और कॉल फॉर ओपिनियन रहेगा. यू विल बी गिविंग देम एन अमेंडेड सेक्शन टू द कॉल फॉर ओपिनियन and you're going to explain the reason why it is qualified. Okay, so you will talk about this part of it, and you will also tell them that यहाँ पे कितना सेल्स रेवेन्यू 50 मिलियन, राइट? सेल्स रेवेन्यू 50 मिलियन. तो 50 मिलियन का अप्रोक्सीमेटली कितना है? 50 मिलियन का 4 मिलियन कितना है? 5 8 40. तो 8%. ओके, 50 मिलियन का 4/50 इज वॉट, 8 ना. 4/50 is 8, क्योंकि 4/50 इज 80%. 4/50 इज 8%. जीरो शिफ्ट हो गया ना. तो 8% है, तो यू विल मेंशन दैट दिस मैटर इज 8% ऑफ द रेवेन्यू. एंड प्रॉफिट कितना है? 15 मिलियन. तो 8 है, तो 15 के रेवेन्यू में कितना आएगा? 15 to 30, 15 3 45. तो 3 और 30 के बीच, सो 2 पॉइंट समथिंग जो भी है, ये 27%. ठीक है, दैट इज 27 या 30% पकड़ लो अप्रोक्सीमेटली. 4.5 मिलियन अगर होता तो 30% हो जाता. ओके, सो ये 2 और 3 के बीच में, तो 20 और 30 के बीच में, सो अराउंड 25 to 30% ऑफ प्रॉफिट जो है. सो यू मेंशन दैट इट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज देयर. ओके, क्योंकि ये लेस देन दैट है, सो अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है, तो यू कैन से इन्वेंट्री इज मटेरियली मिसस्टेटेड. अब इन्वेंट्री के बारे में आप, क्योंकि ऑडिट का कोई भी प्रूफ नहीं है, we do not have any evidences, so you'll write these 4 5 points. Okay, so like हर एक का you can say एक 4 marks का, एक 2 marks का, एक 3 marks का, एक 2 marks का, वैसा. So definitely out of 18 you can easily score around 13 marks from this
6 सब क्वेश्चंस ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, समझ में आया उर्वी? हम्म। ये भी सेम वैसा ही है। सो एक बार आप करो पहले। वन थिंग यू डू, you first read the question, check the answer, and then do the question again by yourself without seeing. ठीक है, so you'll know how to attempt that. अभी MCQs करो। फिफ्थ वाला देखो। You are about to issue the auditor's report for the Exmouth company, a listed client है। halfway through the year suffered a major computer systems failure. Halfway through the year, company suffered a major system issue failure which destroyed the accounting records for the year to date. The backups had not been kept. Backups रखा ही नहीं उन्होंने। Okay, he has reconstructed the figures for the first 6 months. First 6 months को reconstruct किया figures। अब क्या ओपिनियन देना चाहिए? बोलो ABCD गणेश। क्वालिफाइड और एडवर्स। हम्म, क्यों एडवर्स? क्वालिफाइड ठीक है भाई, एडवर्स नेगेटिव क्यों? तो रिकॉर्ड्स ही नहीं रखे। ओके, बट यू कैन गिव देम बट एडवर्स मीन्स एक तरह से नेगेटिव ओपिनियन हो गया ना, राइट? दे नेवर सेड कि हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, दे हैव पुट एवरीथिंग फ्री। ओके, इट गॉट डिस्क्लोज सो रिकंस्ट्रक्टेड पार्ट, सो यू कैन पुट अ डिस्क्लेमर। तो हम्म। क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, डी इज मोर एप्ट। करो पॉइंट। हम्म। डी सिम्स मोर बिकॉज 6 मंथ्स ऑफ अकाउंटिंग तो प्रॉपर था ना। जो 6 मंथ्स का जो नहीं है उन्होंने बनाया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है, एंड दे हैव केप्ट इट ओपन फॉर यू टू ऑडिट पार्ट एविडेंस के लिए, राइट? सो अच्छा, जो 6 मंथ्स का वापस बना है, उसमें भी तो कितने सारे मिस्टेक्स हो सकते हैं, बिकॉज बैकअप ही नहीं है तो उनको क्या रिमेम्बर रहेगा, कभी इनवॉइस इधर उधर हो गया। राइट, तो दैट मीन्स दैट इज परवेसिव। तो वो ऑडिटर्स का असेसमेंट करेगा ना, ऑडिटर्स करेगा ना कि क्या क्लीन क्या नहीं है। तो जब सब क्लीन है, जो भी हमको मालूम तुमको दिया है, एंड ऑन दैट बेसिस आपने भी ऑडिट किया है, सो एवरीथिंग जो हम लोग क्रिएट किया है, वी हैव एन एविडेंस, देन प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट परवेसिव, यहाँ पे अपन ने बोला कि अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स ये सब डिस्ट्रॉय हो गया है। ओके, तो देन इन दैट केस सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल नहीं रहेगा। सो इट इज़ डीम्ड दैट कि वो इट डिपेंड्स अपॉन ऑडिटर का असेसमेंट। तो मैसेज करो, अगर सब ठीक है तो यू आर गोइंग टू गिव इट एनीवे, इट इज़ क्वालिफाइड बाय डिफॉल्ट। अनमॉडिफाइड तो होगा नहीं, बीसी तो होगा नहीं, so qualified रहेगा। so definitely you will put your disclaimer कि भाई subject to these things, सब ठीक है। okay, next, second वाला देखो। what is the purpose of the basis for opinion paragraph? वो opinion paragraph का purpose क्या है auditor report में? which contain an unmodified opinion, means in unmodified basis for opinion paragraph में what does it mean? ABCD में बताओ। unmodified, modified नहीं। सी। सी कैसे? बी। B is right, B for Bravo. Okay, that means you feel like, see, basis for opinion is like you are just concluding that as per all those things. Okay, why you feel like it is in accordance with the ISA part of it. Okay, you're confirming that everything is in as per the ISA, and why do you feel that it is as per the ISA auditing standards and ethical standards part of it? Okay, that's what we say basis for opinion in an unmodified. अभी थर्ड वाला मुझे बताओ। which of the following shows the correct order of elements to be included in auditor's report of Exmouth company? करेक्ट ऑर्डर में क्या है? बोलो।
क्या होना चाहिए? बोलो, थर्ड वन, व्हाट इज आंसर? बी। ये नहीं, बोलो। देखो क्या है ओपिनियन में। क्या है फर्स्ट, क्या है? मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या क्या है? एक फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है? लेफ्ट साइड में देखो सेक्शंस में, एड्रेसी, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन, फिर अदर इंफॉर्मेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर्स के, मैनेजमेंट के, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्नेचर एंड लास्ट में डेट, राइट? अभी यहाँ पे अभी मुझे बताओ, व्हाट शुड बी द आंसर? सी। सी, राइट? ओके। एड्रेस से एड्रेस ही जिसके लिए बना है, उसको ऑडिटर का ओपिनियन, ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लास्ट में डेट। ओके, क्योंकि लास्ट में डेट है तो या तो सी डी, बाई सीइंग द पैटर्न। ए भी तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में डेट होना चाहिए। अब सी डी है तो डी मैच नहीं करा क्योंकि ऑर्डर वैसा नहीं है, और एड्रेस ही को लास्ट में डाल दिया डी में। हेंस ऑप्शन सी। अब डी का बताओ, फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द वर्डिंग ऑफ ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन का डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डी। डी, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में क्या है कि ऑडिटर अपना ओपिनियन डिस्क्लोज नहीं करता, दैट्स द डिस्क्लेमर। ओके, ही इज सर ये गिविंग। चैप्टर में मैं मतलब बहुत से कंफ्यूजन है मेरे को, हाँ तो इसलिए एक तो इसके बार लिए पढ़ो। मेरे को ये सब बड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाँ तो इसलिए एक बार फिर से पढ़ो क्योंकि अपने परसों ही किया है, यू शुड, एक बार फिर से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पे जो है, सी, लाइक आई सेड, अनमॉडिफाइड ओपिनियन जो है वो कब अपन इशू करते हैं, ओके, व्हाट यू कम्युनिकेट। एंड देन मॉडिफाइड ओपिनियन में जो है, मेन थिंग मॉडिफाइड में क्या है, यू हैव क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, qualified opinion without where you cannot have evidence, and disclaimer of opinion. Okay, ये चारों में modified opinion में you'll have a discrepancy and unmodified opinion। unmodified opinion में आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, but modified opinion में ही where you're going to have a reservation in doing giving your opinion। okay, तो वही यहाँ पे ये जो दिया what is unmodified opinion यहाँ पे जो है। Okay, then what is modified opinion and what are the different types? You can see adverse opinion कब देते हैं। Okay, pervasive material और pervasive। डिस्क्लेमर का यही है ना कि एक्सेप्ट दिस एवरीथिंग इज ट्रू इन फेयर व्यू। नहीं, डिस्क्लेमर यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है डिस्क्लेमर। ऑडिटर हैज नॉट obtained sufficient appropriate, एंड क्या दिया देखो डिस्क्लेमर नहीं है, डिस्क्लेमर में क्या है, what does it says? डज नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। That's it, and he is going to give the reason why he does not want to express an opinion। बिकॉज क्लाइंट अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो मैं अपना ओपिनियन कैसे दूंगा? डिस्क्लेमर ओपिनियन मैं अपना दे कैसे सकता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल? और क्लाइंट का डेटा गलत है या फिर उसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, वो जो मुझे इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो नहीं दे रहे हैं, तो मैं नेगेटिव हो या पॉजिटिव
दोनों में दूं तो कैसे दूं, राइट? Okay. सो हेंस डिस्क्लेमर का मतलब ये है कि बस आई कैनॉट ड्रॉ एनी काइंड ऑफ एन ओपिनियन बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, ओके, द बेसिस ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, मुझे बताओ अभी। C. समझ में है गणेश? So which one is except this matter कि other financial statement is true and fair? कौन सा? वो D वाला किस में आना चाहिए फिर? Except this matter the financial statement is true and fair. हाँ तो मुझे पता है एक्सेप्ट फॉर दिस किस में आएगा गणेश? हेलो। हाँ उर्वी, आपने ये पूछा ना कि एक्सेप्ट फॉर मैटर डिस्क्राइब वाले जो है वो हम्म अपन कब देते हैं, अपन जब क्वालिफाइड ओपिनियन जब देते हैं, ओके, वहाँ पे अपन ने बोला ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो है अपन मटेरियल बट नॉट परवेसिव एंड मटेरियल बट परवेसिव जो रहता है, ओके, हाँ जब मॉडिफाइड ओपिनियन होता है, ओके, एंड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड या फिर मटेरियल you do not have any sufficient evidence part of it, in that end you need okay to put it like सब ठीक है बाकी सब, बट एक दो इन्फॉर्मेशन जो नहीं दे रहे, तो given that information you're keeping separate except for that particular thing बाकी सब ठीक है, you got a point? So उसमें material but not pervasive you'll use the except word, okay, and but okay अगर वो pervasive रहेगा तो then you give a adverse opinion, वो याद रखना। हम्म मटेरियल रहेगा एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसस्टेटेड हैं तो आप एडवर्स दोगे। मटेरियल रहेगा एंड परवेसिव रहेगा एंड वो लोग इंफॉर्मेशन सफिशिएंट एविडेंस नहीं दे रहे हैं तो आप एडवर्स के देन यू विल से डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे। दैट मीन्स आप कोई भी ओपिनियन नहीं दोगे, क्योंकि एक तो परवेसिव है, मटेरियल है, और वो लोग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो यू कैनॉट ड्रॉ कंक्लूजन। जब नहीं है तो आप पॉजिटिव भी नहीं दोगे, नेगेटिव भी नहीं दोगे, तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में चले जाओ। ओके, okay मटेरियल है, परवेसिव है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मिसस्टेटेड भी है, तो तो आप नेचुरल adverse नेचुरल आप एडवर्स दोगे। हम्म ठीक है, मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है और मटेरियल मिसस्टेटेड है तो आप एक्सेप्ट बोलोगे, एक्सेप्ट फॉर दैट थिंग, बाकी सब ठीक है। मटेरियल है, परवेसिव है, बट ये जो पीपल विद गवर्नेंस जो है दे आर और वी डू नॉट हैव एनी एविडेंसेस, देन भी आप एक्सेप्ट वाला दे दोगे। एक्सेप्ट वाला कब दोगे, इन शॉर्ट एक्सेप्ट कब दोगे, मटेरियल बट नॉट परवेसिव में, दोनों केसेस में, भले मिसस्टेटेड हो या नहीं हो डजेंट मैटर। अगर यू हैव क्या बोलते हैं मटेरियल बट नॉट परवेसिव तो आप एक्सेप्ट वाला दोगे, ओके। बट अगर मटेरियल एंड परवेसिव भी है तो देन यू हैव टू थिंग्स, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो एडवर्स देंगे, मिसस्टेटेड नहीं है तो हम नो स्टेटमेंट, दैट मीन्स डिस्क्लेमर डाल देंगे। ठीक है, okay गणेश समझ में आया? हाँ सर अभी फिफ्थ वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मुझे ये बता अगर सब समझ में आए तो। बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
in relation to export company. A, B, C, D. Hmm? A. A, the audit matters and should be used to describe the material giving rise to whatever opinion. In this B. case, B, and if a disclaimer of opinion is to be issued, the key audit matter section should not include in the audit request. Do so may suggest other aspects of financial statements are reliable. हाँ, B is more right. Why? Because यहाँ पे B में क्या है? You are giving a disclaimer of opinion. तो क्योंकि आप अपना कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहे हो, यू आर जस्ट सेइंग कि यू मे सजेस्ट एस्पेक्ट्स फाइनेंशियल इवेंट्स आर रिलायबल एंड ऑल, बट you are not going to give any opinion. Why? Because there are key audit matters that should be what we should not be included. So that way, क्योंकि वो audit matters वहाँ पे include होगा ही नहीं. Why? Because you are not drawing any opinion. क्योंकि वो disclosure opinion में है. So as you are not drawing any opinion, you are just talking about the financial statements are other factors are there, but financial statements are not proper. You're not giving any kind of a what we say opinion of that. तो ये ऑडिट रिपोर्ट में ये मेंशन नहीं करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑल. अभी ये वाला पढ़ो. You are about to issue an audit report for two clients, one Calgary company and Kundali company. Okay, a profit before tax दिया है and total assets दिए हैं. अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स दिए हैं, अनकरेक्टेड स्टेटमेंट्स दिए हैं, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स दिया है, रिटर्न ऑफ $15,000 से, एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री दिया है एनआरवी का $85,000 है, और एट द लो कॉस्ट एंड द एनआरवी भी दिया है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दिया है. अब ओपिनियन क्या रहेगा कैलकुलेटली का, मुझे बताओ. Sir, A. ए. सर पहले तो कैलकुलेट करेंगे करके वो 1% के अंदर आता है कि कितना परसेंट आता है, उसके बेसिस पे ओपिनियन दे सकते हैं. ओके, तो ए ऑप्शन. ओके, आंसर ए. एडवर्स एडवर्स इसका ओवर स्टेटमेंट कितना है रिसीवेबल्स का $15,000, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 10,000. ये तो उससे ज़्यादा जा रहा है. अगर ये सही निकला तो उससे ज़्यादा ही जाएगा, तो एडवर्स ओपिनियन. दैट्स फाइन, यू कैन पुट दैट एडवर्स ओपिनियन पार्ट ऑफ. ए इज ओके. सेकंड वाला करो, कुंडली का वो बताओ. सर क्वालिफाइड. क्वालिफाई, वो भी सही है. Disclaimer. डिस्क्लेमर नहीं रहेगा, क्योंकि वाई? बिकॉज सब ठीक है, बट ओनली थिंग इज इट इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव. मटेरियल है बट परवेसिव नहीं. भाई बिकॉज आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना, वो 35% है. देखो ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 245. 245 का 10% इज वॉट 24. 85 मीन्स वॉट 24 करेंगे तो अराउंड 30 to 40 के बीच में आता है. बिकॉज 25 इज वॉट 96. तो इन दैट केस अपना ये 30 और 40 के बीच में आपका आता है. सो दैट में ओवर स्टेटमेंट जो रहेगा आपका 30-40% ही पीबीटी का इशू है 35 का. ओके, जबकि पहला वाला कितना है ऑलमोस्ट 150 टाइम्स. 10 into 150/10 करेंगे तो कितना आएगा, नॉट 150/10, 15/10 करेंगे तो गवर्नमेंट. ये जो 15/10 है पहले वाले में, 15/10 करेंगे तो 150% आ रहा है पीबीटी का, जबकि ये 85/245 करेंगे तो ये 30 to 40 के बीच में आता है. सो दैट मीन्स इट इज विद इन इट. हाँ, यू माइट क्यूट है
because it is not pervasive. So you can give a qualified क्या बोलते हैं ओपिनियन, qualified ठीक है. So you need to check these things in that. Then next, third वाला, how would you answer change for कुंडली कंपनी if the misstatement of inventory जो है that is 85,000 के अलावा instead of 85 अगर 10 रहता तो अब कौन सा देते? अभी तो आपने क्वालिफाइड ओपिनियन बोला उर्वी, अगर 85 के बदले अगर वो 10 होता तो 10 अपन वो होता, तो आप कौन सा देते? फिर भी क्वालिफाइड देते क्या? बोलो. Sir, be unmodified opinion with emphasis it matter. बी अनमॉडिफाइड ओपिनियन विद एम्फेसिस मैटर. क्यों? ये 10/245 करो, 10/245 कितना आता है? 85 के बदले अगर 10 रहता तो 10/245 कितना रहेगा मुझे बताओ. 10/245 कितना है? 10/245 कैलकुलेट करके बताओ, मोबाइल में कैलकुलेटर रहेगा ना, करके जीरो बताओ. पॉइंट जीरो फोर 0.04, that means 4%, right? That means less than 10%, right? Okay, that is फिर एसेट्स तो सेम वही रहेंगे, so that means एसेट्स के कंपैरिजन वो 1% भी नहीं है, और प्रॉफिट के कंपैरिजन वो 4% के पास है. So that means ये काफी छोटा सिग्निफिकेंस है ही नहीं, नो वेर इट इज. तो डेफिनेटली व्हाट आप क्या दोगे? सो यू नॉट एम्फसाइज ऑन द मैटर, व्हाई? बिकॉज इट इज नेग्लिजिबल. ओके, इट So इज. then unmodified opinion. यस. सो जब तक अपन कंपेयर नहीं करेंगे, यू हैव टू क्रिएट अ बेंचमार्क कि वो कितना डिफरेंस है या दूर है क्या. ओके, so because that is not material, so hence because of the amount being large for which you are comparing, you will give them clean sheet, unmodified opinion. अभी फोर्थ वाला मुझे बताओ. फोर्थ वाला, you have also identified material uncertainty relating to going concern during your audit of Calgary company. They have been adequately disclosed by management. How will this impact the auditor's report? बी D, fourth one. हो सकता है. Hmm, ये वाला कि बी के डी, दिस वन और दिस वन? बी बी ओके, बी. ओके, और भी आप क्या बोलते हो? Sir, B. ओके, डी क्यों? आपको डी क्यों लगता है? सर वो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ऑडिटर को तो एक बार नोट में डालना ही पड़ता है ना हम्म. कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है थोड़ा सा और तो रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न. यहाँ पे वो वैसे भी डाल रहा है ना, रिपोर्ट शुड इंक्लूड आइटम मटेरियल मैनेजमेंट डिस्क्लोजर पार्ट, राइट? तो यहाँ पे वो यहाँ पे बोल रहा है कि वो इंक्लूड नहीं करना चाहिए डी. ऑप्शन फोर्थ का जो है वो बी होना चाहिए. दिस व्हाट यू सेड इज राइट. सो ही हैज टू मेंशन इन अ सेक्शन, क्योंकि अलग से अपन ने बोला ना कि मटेरियल अनसर्टेनिटी का अपन ने गोइंग कंसर्न का भी हम्म. इशू देखा इन द प्रीवियस चैप्टर. सो ऑप्शन शुड बी डी. ब्रावो. फिफ्थ का देखो,
included with the financial statements of the Kundali company is the provision for a legal case है. Okay, जो कब आएगा उसका आउटकम पता नहीं. Adequate disclosure of the matter has been included by the management. The case represents a significant uncertainty, even means अच्छा खासा amount. And you have included an emphasis on the matter in the order support to refer by the client's disclosure of the uncertainty. अगर client disclose कर रहा है uncertainty का, तो क्या करोगे? यहाँ पे what action you are going to take? सर ए. A. Are you sure A? फिर से पढ़ो. The case represents significant uncertainty and you have included already emphasis of matter. देखो यहाँ पे क्या दिया है देखो. What does it say? सर तो फिर बी आएगा क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड किया है. हाँ, तो क्योंकि ऑलरेडी वो इंक्लूड कर दिया, emphasis of the matter दिया है, ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है, तो आपको कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है रिपोर्ट में. नो फर्दर मॉडिफिकेशन. गॉट इट. हम्म. सो अभी जो है वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस. ओके. एंड अभी नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट 13 एंड 14 चैप्टर्स जो है, आज कोई भी नहीं आया. आप रिवीजन करो. एंड वो भी आपको ISS जो है, यू हैव टू रिवाइज दोस थिंग्स. एक बार रिवाइज करके काफ़ी चैप्टर कंफ्यूजन है. डू दैट. एंड मंडे को विल डू दिस 13 एंड 14 छोटे चैप्टर से 13 14. So we'll do the 13 14. एक बार go through करो 13 14 भी, so that you will not have any problem. So इसमें key ISS हैं which you will be using in the exam as well. ISS and और दूसरा financial standards में, accounting standards में, ये auditing standards हैं, and you have accounting standards also. IAS will do both. 13 भी और 14 दोनों important हैं. So tomorrow you should not have any confusion part. ठीक है, आज ये दोनों कर लो. Tomorrow and day after tomorrow we will do those things. आज कोई भी नहीं आया तो फिर से रिपीट करना पड़ेगा. अच्छा, कल ही हम करते हैं ये दो. आप आज रिवाइज करो.